Assalamu alaikum. We talked about carcinoma of the gallbladder and the carcinoma of the liver, most commonly the hepatocellular carcinoma. So today we are going to talk about cholangiocarcinoma. So as the name indicates, it's the carcinoma which involves the biliary channels and the ducts. So it is not only in the extrahepatic area of the biliary channels, but it's also the intrahepatic, perihilar or the extrahepatic biliary tree, and this cholangiocarcinoma does not include the carcinoma of the gallbladder and the ampulla of water. It is said to be a heterogeneous group of tumors which arise from the cholangiocytes which lie in the biliary tree. Now we have talked about three varieties. There is intrahepatic cholangiocarcinoma, there is perihilar cholangiocarcinoma, and there is extrahepatic or distal cholangiocarcinoma. The intrahepatic type originates from either very small intrahepatic ductules, which is known as peripheral cholangiocarcinoma, or it can involve the large intrahepatic ducts proximal to the bifurcation of the right and the left hepatic ducts. Then extrahepatic ducts are divided either into a perihilar, which includes the confluence of the right and left hepatic ducts, and distal tegments with the transition at the point where the common bile duct lies posterior to the duodenum. तो हमने पहले भी बात की थी कि जो कॉमन बाइल डक्ट है उसका एक सुप्राडुडनल पोर्शन होता है, एक रिट्रोडुडनल पोर्शन होता है, एक इंट्राडुडनल पोर्शन होता है. तो जो रिट्रोडुडनल, जहाँ पे रिट्रोडुडनल पोर्शन शुरू होता है, वहाँ से ट्रांजिशन पॉइंट है, उसको हम डिस्टल कोलेंजियोकार्सिनोमास कहलाते हैं, और इससे जो ऊपर है कॉन्फ्लुएंस तक वो पेरीहाइलर कोलेंजियोकार्सिनोमा कहलाते हैं. Now, depending upon their site of origin, they have different features and they require specific treatments. इसका मतलब है कि जो इंट्राहेपेटिक कोलेंजियोकार्सिनोमास हैं उनके फीचर्स डिफरेंट हैं, उनकी ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ डिफरेंट हैं, उनको ट्रीट करने के तरीके मुख्तलिफ हैं बनिस्बत उनके जो पेरीहाइलर हैं, एंड दे आर डिफरेंट फ्रॉम दी डिस्टल कोलेंजियोकार्सिनोमास. सो पेरीहाइलर रीजन के जो कार्सिनोमास हैं उनको अकॉर्डिंग टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ हेपेटिक डक्ट्स हम क्लासिफाई करते हैं. ये बिस्मथ कॉर्लेट क्लासिफिकेशन है, हम अभी आगे चल के इसको देखते हैं. जो प्रॉपर हेपेटिक डक्ट बाइफर्केशन को, स्पेशली जो कॉन्फ्लुएंस को इन्वॉल्व करता है, उसको हम क्लैटस्किन ट्यूमर कहते हैं, और इसका नाम हाइलर कोलेंजियोकार्सिनोमा भी है. इट्स अ टिपिकली डिफिकल्ट malignancy to deal. Then intrahepatic cholangiocarcinomas, they account for 10% of the total of the cholangiocarcinomas. 50% are perihilar and about 40% are distal cholangiocarcinomas. Now it makes sense that tumors that develop in the small versus the tumor that develop into the large bile ducts, they would have different symptoms and they would have different types of progression. And it is said that different types of cholangiocarcinomas, they are associated with different genetic factors. तो अभी जो हम बात कर रहे थे, जो क्लासिफिकेशन है, जो इंट्राहेपेटिक कोलेंजियोकार्सिनोमा हम उनको कहते हैं, जो ये मेन डक्ट की जो बाइफर्केशन है, मेन डक्ट ये लेफ्ट और राइट, इस मेन डक्ट से ऊपर जितने biliary चैनल्स की जो malignancies हैं वो इंट्राहेपेटिक कोलेंजियोकार्सिनोमास कहलाती हैं. और यहाँ से लेके ये जो सुप्राडुडनल पोर्शन जहाँ ख़त्म होता है कॉमन बाइल डक्ट का, ये सारा एरिया जो है ये पेरीहाइलर कहलाता है. ये पेरीहाइलर कोलेंजियोकार्सिनोमास है. और इससे आगे जो बाकी के biliary चैनल है, जो कॉमन बाइल डक्ट है, इसकी जब इन्वॉल्वमेंट हो तो ये डिस्टल कोलेंजियोकार्सिनोमास कहलाते हैं. तो ये अबाउट 10% है इंट्राहेपेटिक. This is about 50% and this is about 40% of the total of cholangiocarcinomas. और हमें पता है कि जो about 3% of total जो GI malignancies हैं वो cholangiocarcinomas होती हैं. जो बिस्मथ कॉर्लेट क्लासिफिकेशन है, जो पेरीहाइलर कैंसर्स की है, पेरीहाइलर कोलेंजियोकार्सिनोमास की है, उसमें टाइप 1 वो है जिसमें कॉन्फ्लुएंस इन्वॉल्व नहीं है और डिस्टल टू कॉन्फ्लुएंस है. टाइप 2 वो है जो कि कॉन्फ्लुएंस को इन्वॉल्व कर रही है. टाइप 3A वो है जो कॉन्फ्लुएंस और राइट हेपेटिक डक्ट को कर रही है. टाइप 3 जो है कॉन्फ्लुएंस और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट को कर रही है.
टाइप 4 जो है कॉन्फ्रेंस एंड बोथ राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट्स को कर रही है, एंड टाइप 5 जो है वो मल्टीसेंट्रिक है, एक से ज्यादा जगह, सॉरी ये टाइप 4 लिखा है, इट इज टाइप 5 विच इज मल्टीसेंट्रिक. दिस इज द बिस्मथ कॉर्लेट क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर पेरीहाइलर cholangiocarcinomas. Then we know that it's 3% of all GI malignancies, and it is very high in Southeast Asia. And look at this, 90% in Thailand, 20% in Korea, and 5% in Japan. And it is said the high prevalence is due to an endemic chronic parasitic infestation, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पे होता है. आजकल इंट्रापैटिक वैरायटी जो है उसका इंसिडेंस बढ़ रहा है और एक्स्ट्रापैटिक का डिक्लाइन कर रहा है. परहैप्स द रीज़न इज़ जो इमेजिंग इम्प्रूव हो गई है, जो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्स्ट्रापैटिक बिलरी चैनल्स को इमेज कर सकते हैं, देख सकते हैं. तो वो पहले जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जो प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस हैं, वो पहले आइडेंटिफाई हो जाती हैं. तो इसलिए इस किस्म की मैलिग्नेंसी का इम्कान थोड़ा कम होता जा रहा है, इंसिडेंस थोड़ा कम होता जा रहा है. रिस्क फैक्टर में सबसे पहले प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस है. इसका लाइफ टाइम रिस्क 10 to 15% है. अल्कोहल कंजम्पशन से इसका रिस्क बढ़ जाता है, और वो पेशेंट्स जिनको प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस के साथ अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, उनका रिस्क और ज़्यादा. 30% ऑफ जो केसेस है जो प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस के जिनकी अंदर मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन है, उनको साथ अल्सरेटिव कोलाइटिस भी होता है. देन फाइब्रोसिस्टिक लिवर डिजीज, जिसके अंदर करोली सिंड्रोम है, कंजेनिटल हेपेटिक फाइब्रोसिस है, जो कोलिडोकुलसिस जिनकी वजह से बनती है, इसमें बिलरी स्टेसिस होता है, पैनक्रेटिक जूस रिफ्लेक्स होता है, और डीकॉन्जुगेट हो जाते हैं कार्सिनोजेंस. देन पैरासिटिक इन्फेस्टेशन जो हेपेटोबिलरी फ्लूक्स है, ओपिस्टोर्किस विवेरेनी है, क्लोनोर्किस सिनेंसिस है, ये सब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन करते हैं, और इस क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से वहाँ पे कोलेंजियोकार्सिनोमास डेवलप होते हैं. जैसे हमने कहा कि थाईलैंड में और कोरिया में इसका इंसिडेंस काफ़ी ज़्यादा है. Then cholelithiasis and hepatolithiasis is said to play a important role. They are considered as risk factors. Lynch syndrome, hepatic papillomatosis, hepatitis B, hepatitis C, and then liver cirrhosis. Then various toxins, जो थोरोट्रास्ट है, जो रबर इंडस्ट्री है, ऑटो इंडस्ट्री है, वुड फिनिशिंग इंडस्ट्री है, जिसके अंदर वो हम डिफरेंट केमिकल्स को यूज़ करते हैं, इन सब का भी इंसिडेंस. और जैसे हमने कल के लेक्चर में हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में बात की थी, तो आपने देखा होगा कि उसमें भी ये सारे रिस्क फैक्टर्स जो हैं ये डिस्क्राइब किए गए थे. उसके अलावा डायबिटीज़, HIV इन्फेक्शंस एंड ओबेसिटी, इनके अंदर भी इंक्रीज्ड इंसिडेंस है कोलेंजियोकार्सिनोमा का. सो होता क्या है, मोर देन 90% ऑफ द केसेस आर एडिनोकार्सिनोमा, और ये इसमें 3 तरह के होते हैं. एक स्क्लीरोजिंग है विच इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप, देन नोडुलर एंड देन पेपिलरी. जो स्क्लीरोजिंग है वो डेस्मोप्लास्टिक रिएक्शन होता है, एक्सटेंसिव फाइब्रोसी होती है, और प्री ऑपरेटिव डायग्नोसिस डिफिकल्ट है क्योंकि बाइल डक्ट की वॉल को इन्वेट कर जाता है. इसकी रिसेक्टेबिलिटी और क्योर रेट्स ज़रा काफ़ी कम है क्योंकि दुश्वार है, ये स्ट्रक्चर की तरह प्रेजेंट करता है. जो नोडुलर है उसमें कंस्ट्रक्टिंग एनुलर लीजन होती है, इट इज़ हाईली इन्वेजिव, एंड वंस अगेन देयर इज़ लो रिसेक्टेबिलिटी एंड क्योर रेट. जो पेपिलरी है वो सबसे रेयरेस्ट है, ये बल्कि मैस इन CBD से प्रेजेंट करता है. ये वो है जिसकी रिसेक्टेबिलिटी भी बेहतर है, इसके क्योर रेट्स भी बेहतर हैं. और बाकी जो दोनों वैरायटी हैं जो ज़्यादा कॉमन है, बोथ स्क्लीरोजिंग और नोडुलर, वो जब डायग्नोज होते हैं तो यूजली दे आर नॉट रिसेक्टेबल एट दैट टाइम, एंड दैट इज़ वाई दे हैव पुअर क्योर रेट्स. अब जैसे हमने पहले कहा, किसी भी मैलिग्नेंसी को जब हम ट्रीट करते हैं, मैनेज करते हैं, उसके 5 ही स्टेप्स हैं. पहले हम डायग्नोसिस करते हैं, फिर हम स्टेज करते हैं, फिर हम मैनेजमेंट प्लान करते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेज, फिर उसको फॉलो अप करते हैं, फिर रिहैबिलिटेट करते हैं. तो इसकी जो क्लासिफिकेशन है ये तीनों के लिए डिफरेंट है. हमने कहा था कि तीनों के चूँकि प्रोग्रेशन डिफरेंट है, तीनों की ट्रीटमेंट्स डिफरेंट है, तो तीनों की स्टेजिंग भी डिफरेंट है. ये जो इंट्राहेपेटिक की हम बात करें कोलेंजियोकार्सिनोमा, तो अगर आप गौर से देखें तो ये तकरीबन वही क्लासिफिकेशन है जो कि हमने हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के लिए पढ़ी थी, जिसमें T1A सॉलिटरी ट्यूमर लेस देन 5 सेंटीमीटर विदाउट वास्कुलर इन्वेजन, T1B सॉलिटरी ट्यूमर मोर देन 5 सेंटीमीटर विदाउट वास्कुलर इन्वेजन है, T2 में सॉलिटरी विद इंट्राहेपेटिक वास्कुलर इन्वेजन है,
मल्टीपल ट्यूमर्स है विद और विदाउट वास्कुलर इन्वेजन। T3 में विसरल पेरिटोनियम को परफोरेट कर गया है और T4 में इसने लोकल एक्स्ट्रापैटिक स्ट्रक्चर्स को डायरेक्ट इन्वेजन के साथ पकड़ लिया था। और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के साथ जब आप इसको कंपेयर करें तो उसमें जो T4 के अंदर ने T3 में ये था और उसमें गॉल ब्लैडर को अगर इन्वेड भी कर ले तो हम उसको T4 में नहीं कंसिडर करते। देन सिमिलरली एंड नॉट नो रीजनल नोड्स एंड वन रीजनल नोड्स और स्टेज 1A T1A है, 1B T1B है, 2 is T2, स्टेज 3 is T3। तो सिंपल है, जो T1A है वो स्टेज 1A है, जो T1B है वो स्टेज 1B है, जो T2 है वो स्टेज 2 है, जो 3A है वो स्टेज T3 है। इन सब में नोड्स नहीं है। जो स्टेज 3B है उसमें या तो T4 है या कोई भी T है विद N1 और स्टेज 4 वही है जिसमें मेटास्टेसिस हो। सो इट्स एन इजी टू रिमेंबर क्लासिफिकेशन। देन जो पेरीहाइलर कोलेंजियोकार्सिनोमा है वो ऑफ कोर्स उसका ज़रा सा फ़र्क है बिकॉज ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व कर रहा है। तो सिमिलरली TIS कार्सिनोमा इन C2 T1 इज कन्फाइंड टू द डक्ट विद एक्सटेंशन अप टू द मस्कुलर लेयर। जो ल्यूमन है उसके मस्कुलर लेयर तक जो है वो T1 है। T2A में बियॉन्ड द वॉल ऑफ द बाइल डक्ट टू द सराउंडिंग एडिपोज टिश्यू। T2B में एडजेसेंट हेपेटिक पैरेन्काइमा, ये पेरीहाइलर की बात हो रही है तो उसके पास जो एडजेसेंट हेपेटिक पैरेन्काइमा अगर सिर्फ इन्वॉल्व हुई है तो वो T2B है। T3 उस वक्त है when it invades the unilateral branches of the portal vein or the hepatic artery, and T4 is when it would invade the main portal vein or its branches bilaterally, or it invades the common hepatic artery or invades the second order biliary radicals. Then once again NX nodes cannot be assessed. No regional nodes and not N1 regional nodes and N2 metastasis to periaortic pericaval superior mesenteric। तो अगर आप पेरीहाइलर कोलेंजियोकार्सिनोमा को देखते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन को देखते हैं तो ये किससे मिलती जुलती है? ये बिल्कुल गॉल ब्लैडर की जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी TNM, ये बिल्कुल उससे मिलती जुलती है। इट रिजेंबल्स दैट अ लॉट। सो जो इंट्रापैटिक है वो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा से उसकी क्लासिफिकेशन मिलती है, जो पेरीहाइलर है उसकी गॉल ब्लैडर कार्सिनोमा से क्लासिफिकेशन मिलती है। तो स्टेज 1 में इसके वही T1 है कि कन्फाइंड टू द मस्कुलर लेयर। स्टेज 2 T2A और B दोनों हैं जिसके अंदर वॉल के अंदर है या सिर्फ हेपेटिक पैरेन्काइमा इन्वॉल्व है। स्टेज 3A में T3 है कि यूनिलैटरल ब्रांचेस पकड़ी हैं पोर्टल वेन की। 3B में जो है T1 to 3 के साथ लोकल नोड्स इन्वॉल्व हो गए। 4A में कोई भी T है मगर पेरियोटिक पेरिकोकेवल यानी N2 नोड्स हैं और 4B में जो है कोई भी T कोई भी N है या मेटास्टेसिस है। बिल्कुल जो कार्सिनोमा ऑफ गॉल ब्लैडर की क्लासिफिकेशन है ये बिल्कुल उससे रिजेंबल करती है। देन एक्स्ट्रापैटिक, जो कि एक्स्ट्रापैटिक हम किसकी बात करें? डिस्टल कोलेंजियोकार्सिनोमा जो कि रिट्रोडूनल पोर्शन से शुरू होता है। तो इसमें T1 क्या है? कन्फाइंड टू द बाइल डक्ट। T2 इन्वेड्स बियॉन्ड द वॉल ऑफ द बाइल डक्ट। अब इसमें A और B इसलिए नहीं है कि इसके इर्द गिर्द ना एडिपोज टिश्यू उस तरह है ना यहाँ पे लिवर है। जब ये बाहर निकल जाएगी वॉल से तो इट इन्वेड्स द लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास, तो ये T3 हो जाएगी। और T4 उस वक्त है जब ये किसी मेन पोर्टल वेन उसकी ट्रिब्यूटरीज को बायलैटरली पकड़ लेती है या कॉमन हेपेटिक या कोई और एडजेसेंट स्ट्रक्चर को। अब इसमें देखें N2 नहीं है, इसमें वही N0 N1 है और M0 M1 है। स्टेज 1A वही T1, 1B, T2, 2A, T3, 2B जिसमें नोडल इन्वॉल्वमेंट हो गई है। जब नोडल इन्वॉल्वमेंट हो गई है तो कोई भी T है, N1 हो गया तो स्टेज 2B हो गया। स्टेज 3 क्या है? T4 और स्टेज 4 क्या है? NET, NEN लेकिन मेटास्टेसिस। सो बेसिकली ये सारी TNM जो आप जब इसको जोड़ते हैं स्टेजिंग के साथ तो इट इज़ वेरी मच बेस्ड ऑन द एक्चुअल ट्यूमर। क्योंकि ल्यूमन है तो उसमें यह है कि वो वॉल के अंदर है या वॉल से बाहर चला गया है, और जब वो वॉल से बाहर चला गया तो उसने किन चीज़ों को पकड़ा? क्या उसने पोर्टल वेन को पकड़ लिया है, कि उसने कॉमन हेपेटिक आर्टरी को पकड़ लिया, उसकी मेन ट्रिब्यूटरीज को पकड़ लिया और स्ट्रक्चर्स को पकड़ लिया? और ये हम एडवांस स्टेज क्यों हो गई है? क्योंकि हम जब आगे चल के देखते हैं हमारी जो सर्जिकल रिसेक्टेबिलिटी है वो फिर पॉसिबल नहीं रहती, और जब सर्जिकल रिसेक्टेबिलिटी पॉसिबल नहीं रहती तो ट्यूमर को क्योर करने का इम्कान हमारे पास नहीं रहता।
क्लिनिकली कब प्रेजेंट करते हैं? ये क्लिनिकली पेशेंट उस वक्त प्रेजेंट करते हैं जब ट्यूमर बिलियरी सिस्टम को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, एज सिंपल एज दैट। और हमें पता है जो इंट्रापैटिक है, चूंकि वो पेरिफेरल है, अगर पेरिफेरल किसी जगह पे पकड़ भी लेगा, रास्ता रुक भी जाएगा, तो भी वो लीजन इतनी बड़ी नहीं होगी कि पेशेंट को जॉन्डिस हो या उस तरह की ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के साथ प्रेजेंट करे। लेकिन जो पेरीहाइलर है और जो डिस्टल कोलेंजियोकार्सिनोमास है, वो एक्चुअली ट्यूमर ऑब्स्ट्रक्शन जब करेगा तो जो जॉन्डिस होगा उसके साथ प्रेजेंटेशन होती है। तो ये पेशेंट जो है, जो प्लूराइटिस है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की मेन फीचर, देन अब्डोमिनल पेन, वेट लॉस एंड फीवर। फीवर क्यों होता है? क्योंकि जब ऑब्स्ट्रक्शन होगी, स्टेसिस होगा तो सुपरएडेड इन्फेक्शन होगा। साइंस में ऑफ कोर्स जॉन्डिस, देन हेपेटोमेगाली एंड और राइट अपर कोर्डेंट मैस। डायग्नोज कैसे करते हैं? जब हम ब्लड टेस्ट करके लिवर फंक्शन टेस्ट देखते हैं तो टोटल बिलीरुबिन जो है वो बड़ी होती है, जो कि ऑब्स्ट्रक्शन में है, साथ एल्कलाइन फॉस्फेटेज रेज्ड होगा। देन कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन लेवल्स, ना ये सेंसिटिव है लेकिन ना ही स्पेसिफिक है, लेकिन अगर ये 5.2 नैनोग्राम से ज़्यादा है तो फिर इसकी सेंसिटिविटी स्पेसिफिटी थोड़ी बेहतर हो जाती है। लेकिन ये याद रखें कि ये कोलेंजियोकार्सिनोमा के अलावा इवन गैस्ट्राइटिस में और COPD में भी बढ़ जाता है। देन CA19-9, ये वाइडली यूज करते हैं हम मैनेजमेंट ऑफ कोलेंजियोकार्सिनोमा के लिए, स्पेशली अगर इसकी रिलेशनशिप है विद प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस, और इसमें जो कट ऑफ वैल्यू है वो 129 यूनिट्स पर ml है, तब ये 99% स्पेसिफिक हो जाता है। Remember, this also increases in pancreatic, exocrine and endocrine tumors and also in biliary cancer, hepatocellular carcinoma and acute cholangitis। तो जो हमने hepatocellular carcinoma में भी जो 2 ट्यूमर मार्कर्स की हमने बात की थी, वो भी CEA और CA19-9 के लेवल्स थे। इसी तरह कोलेंजियोकार्सिनोमा में भी ये वंस अगेन, उसमें भी जो CEA लेवल्स थे उनकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी कम थी बनिस्बत CA19-9 के। और हमने ये पहले बात की है कि ये जो CA है, इट इज एन एब्रीविएशन फॉर कार्बोहाइड्रेट एंटीजन, और जो CEA है, इट इज एन एब्रीविएशन फॉर कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन। फिर हम इमेजिंग करते हैं, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड हमें बिलियरी डक्टल डायलिटेशन बता सकता है, इट कैन लोकलाइज द साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, इट कैन आल्सो टेल अस अबाउट प्रेजेंस ऑफ गॉलस्टोन्स। देन CT स्कैन एब्डोमेन टेल्स अस, ये ज़्यादा हमें इंट्रापैटिक लीजन्स के बारे में ज़्यादा तफसील से बताएगा, बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन बताएगा एंड इंपॉर्टेंटली लिवर एट्रोफी के बारे में बताएगा। Then MRCP हम कर सकते हैं, which is we know a non-invasive method to evaluate the ductal system. It is superior in defining anatomical extent of tumor and cause of jaundice. MRCP को जब हम स्पाइरल CT के साथ जोड़ देते हैं तो जो इन्वेजिव कोलेंजियोग्राफी है, स्पेशली फॉर प्रॉक्सिमल लीजन्स, उसके लिए ये ज़्यादा बेहतर डायग्नोस्टिक टूल है। प्रॉक्सिमल लीजन्स के लिए, डिस्टल के लिए क्यों नहीं? क्योंकि जो उसमें जो इन्वेजिव कोलेंजियोग्राफी है उसमें हम साथ कोई थेराप्यूटिक स्टेप भी ऐड कर सकते हैं। तो ERCP या PTC जो है, ये आम तौर पे हम कह रहे हैं MRCP और स्पाइरल CT ने इसको रिप्लेस कर दिया, लेकिन डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन में जब बिलियरी ड्रेनेज की ज़रूरत है तब इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, PTC को इस्तेमाल किया जा सकता है प्रॉक्सिमल बिलियरी ट्री ऑब्स्ट्रक्शन में, और ERCP को इस्तेमाल किया जा सकता है डिस्टल बिलियरी ट्री ऑब्स्ट्रक्शन में। एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड इज न्यू इन्वेस्टिगेशन, इट इज़ नॉट फ्रीली अवेलेबल। इस वक्त हमारे पास लाहौर में इतनी फ्रीली अवेलेबल नहीं है, लेकिन इट हेल्प्स टू विजुलाइज द लोकल एक्सटेंट, ऑल्सो द स्टेटस ऑफ लोकल नोड्स। और जब अल्ट्रासाउंड विद FNAC करते हैं तो ग्रेटर सेंसिटिविटी डिस्टल ट्यूमर्स को ढूंढने में, आइडेंटिफाई करने में, ये ERCP की जो ब्रश साइटोलॉजी है उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड करके FNAC कर लें। ट्यूमर की भी कर सकते हैं और जो पास लिम्फ नोड्स हैं उनकी भी कर सकते हैं। प्रॉक्सिमल ट्यूमर्स में इनका रोल अभी इतना डिफाइन नहीं हुआ। देन यू कैन ऑल्सो यूज इंट्राडक्टल अल्ट्रासाउंड। इंट्राडक्टल अल्ट्रासाउंड कोलिडोकोस्कोप के साथ ट्रांसड्यूसर लगा के किया जा सकता है, और ये यूजली पर ऑपरेटिव करके देखते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल ट्यूमर एक्सटेंट कितनी है, एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स में कितनी है, रिसेक्टेबिलिटी को ढूंढने के लिए। Then PET scan is an important investigation in cholangiocarcinomas because of the high glucose uptake of the bile duct epithelium। तो ये जो occult metastasis है उनको ढूंढने में बड़ा हेल्पफुल है, क्योंकि वो इतने छोटे हैं या उनका साइज छोटा है, तो वो CT स्कैन में, इवन स्पाइरल CT स्कैन में भी मिस होने का इम्कान बढ़ जाता है। तो PET scan can identify occult metastasis। Then you can see there is this lesion
जो कि कॉमन बाइल डक्ट को इन्वॉल्व कर रही है। दिस इज अनदर लीजन विच इज इन्वॉल्विंग द कॉमन बाइल डक्ट। तो ये आपको लगता है कि ये जो वैरायटी है ये वो वाली है जिसको हम कहते हैं नोडुलर, और ये परहैप्स पेपिलरी है क्योंकि ये ल्यूमन में प्रोजेक्ट कर रहा है, थोड़ा सा ल्यूमन जो है वो यहाँ पे भी बाकी भी है। एक वॉल से आ रहा है, प्रोजेक्ट कर रहा है, लेकिन दूसरी वॉल को इन्वॉल्व नहीं कर रहा, जबकि ये जो है ये लगता है एक नोड्यूल है जिसने पूरे ल्यूमन को ऑब्स्ट्रक्ट किया हुआ है। सिमिलरली सीटी स्कैन हमें बता रहा है, जैसे इसके अंदर मल्टीपल ये इंट्रापैटिक बिलियरी चैनल्स की डायलेटेशन बता रहा है, और यहाँ पे लग रहा है कि ये हाइलम के करीब एक लीजन पड़ी है जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन है। सिमिलरली हेयर दिस लीजन इज कॉजिंग ऑब्स्ट्रक्शन रिजल्टिंग इन द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द इंट्रापैटिक बिलियरी चैनल्स। अब ट्रीटमेंट किस चीज़ पे बेस करती है? एक तो पहली बात है कि प्री ऑपरेटिव बिलियरी ड्रेनेज हमें कब चाहिए। जिन पेशेंट्स में बिलीरुबिन लेवल्स 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो गई है उनकी मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, कोलिस्टेसिस की वजह से लिवर डिसफंक्शन होता है, बिलियरी सिरोसिस हो जाता है। तो उसको बचाने के लिए हम पहले प्री ऑपरेटरी बिलियरी ड्रेनेज करते हैं, बाइल को, बिलीरुबिन लेवल्स को 2 से 2.5 तक लेके आते हैं, स्पेशली फॉर हाइलर कोलेंजियोकार्सिनोमा, एंड इट कैन बी डन परक्यूटेनियसली पीटीसी करके या एंडोस्कोपिकली डिपेंडिंग अपॉन दी साइट। तो हम जब पेरी हाइलर की कह रहे हैं या हाइलर कोलेंजियोग्राम की कोलेंजियोकार्सिनोमा की कह रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो परक्यूटेनियस करनी पड़ेगी। फिर उसके अलावा हम प्री ऑपरेटिवली पोर्टल वेन एम्बोलिज्म कर सकते हैं। ये एक टेक्निक है जिसमें हम पोर्टल वेन के खास एरिया को जो जहाँ पे हमने रिसेक्शन नहीं करनी है उस एरिया की ब्लड सप्लाई को मेंटेन करते हैं, और दूसरी एरिया की ब्लड सप्लाई को जो पोर्टल वेन से उसको रोक देते हैं। उसके नतीजे में जिस जगह को पोर्टल वेन ज़्यादा ब्लड सप्लाई करती है वो साइज़ बड़ा होता जाता है, वो पोर्शन लिवर का है जिसको हमने बचा के रखना है। सो इट इज़ यूजफुल स्पेशली इन हाइलर कोलेंजियोकार्सिनोमा व्हेन यू हैव टू डू अ मेजर हेपेटिक रिसेक्शन, क्योंकि जो मेजर हेपेटिक रिसेक्शन है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न है वो ये है कि जो हेपेटिक रेमनेंट आप छोड़ के आ रहे हैं वो कंपैटिबल विद लाइफ है कि नहीं। तो जब हम पोर्टल वेन एम्बोलिज्म कर देंगे तो उसकी वजह से जो जिसको हम छोड़ रहे हैं वो हाइपरट्रॉफी हो जाएगा फ्यूचर रेमनेंट लिवर का, एंड इट मे हेल्प अस इन गेटिंग मार्जिन्स नेगेटिव ऑक्सीजन, जो कि प्राइमरी पर्पस है हमारा सर्जरी का कि हम आर-नॉट रिसेक्शन को अचीव कर सकें। न्यू एडजुवेंट थेरेपी अभी तक कोई ऐसी सिग्निफिकेंस इसके ऊपर एविडेंस नहीं है कि कोई फ़ायदा कोलेंजियोकार्सिनोमा में इसका एडिड एडवांटेज है। सर्जिकल रिसेक्शन आप देख सकते हैं जो रिसेक्टेबिलिटी रेट्स हैं वो सबसे अच्छे डिस्टल के हैं, फिर इंट्रापैटिक के हैं, और फिर पेरी हाइलर के हैं। पेरी हाइलर इज ए डिफिकल्ट रिसेक्शन विद पुअर रिसेक्टेबिलिटी। रिसेक्टेबिलिटी के क्राइटेरिया क्या? सबसे पहले तो हमने जैसे कहा था N2 नोड्स है जिसके अंदर रिट्रोपेनक्रियाटिक, पैरासीलियक, नोडल मेटास्टेसिस है, फिर डिस्टेंट लिवर मेट्स है। डिस्टेंट का मतलब है कि अगर ट्यूमर मेरा पड़ा हुआ है राइट लोब में और मुझे लेफ्ट लोब के अंदर भी मेट्स मिल रहे हैं तो ये डिस्टेंट मेट्स है, या अगर ट्यूमर मेरा डिस्टल कोलेंजियोकार्सिनोमा में है लेकिन उसके मेटास्टेसिस लिवर के अंदर है देन इट्स अ डिस्टेंट लिवर मेट। देन एब्सेंस ऑफ पोर्टल वेन और मेन हेपेटिक आर्टरी, अगर वो इन्वेड नहीं हुए मेन पोर्टल वेन उनकी मेन ट्रिब्यूटरीज तो रिसेक्टेबल है। अगर एक्स्ट्रा हेपेटिक एडजेसेंट ऑर्गन इन्वेजन नहीं होगी तो वो रिसेक्टेबल है। डिसैमिनेटेड डिजीज नहीं है, वाइड स्प्रेड मेटास्टेसिस नहीं है, पेरिटोनियल मेटास्टेसिस नहीं है तो ये रिसेक्टेबल है। प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स ऑफ कोर्स डिपेंड करते हैं कि ट्यूमर लोकेट कहाँ पे हुआ है। जो इंट्रापैटिक है और जो खासतौर पे पेरिफेरली लोकेटेड है उनके प्रोग्नोसिस अच्छे हैं। प्राइमरी ट्यूमर का साइज जितना छोटा होगा, पेरी हाइलर है या डिस्टल है, उतनी ही ज़्यादा इम्कान है कि आप उसका R-नॉट रिसेक्शन करेंगे, आपके रिसेक्शन मार्जिन्स जो है क्लियर होंगे। एक्सटेंट ऑफ सर्जरी उस पर डिपेंड करेगी कि कितना आपने कितनी बड़ी रिसेक्शन की है। अगर इंट्रापैटिक है कितना सेगमेंट लिवर का आपका निकालना पड़ा है। एंड देन कोमॉर्बिडिटीज, उसके पेशेंट की कार्डियोपल्मोनरी स्टेटस क्या है, रीनल स्टेटस क्या है, कोई और बीमारियां कैसे हैं, डायबिटीज़ वगैरह वगैरह। देन हिस्टोलॉजिकल मार्जिन स्टेटस एंड लिम्फ नोड स्टेटस, ये सब प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स हैं। ओके, मकसद क्या है? इंट्रापैटिक कोलेंजियोकार्सिनोमा में हम क्या करते हैं? हम हेपेटिक रिसेक्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि बिलियरी चैनल्स हैं वो हेपेटिक पैरेन्काइमा के अंदर पड़े और हमने क्या अचीव करना है? नेगेटिव रिसेक्शन मार्जिन्स करना है।
तो जब हम पेरिफेरली लोकलाइज ट्यूमर का ये काम करें तो हमें पोर्टल लिम्फेडेनेक्टमी साथ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो सेंट्रली प्लेस्ड ट्यूमर हैं जिनके अंदर हमें एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइल डक्ट रिसेक्शन कर सकती पड़ती है, तो उसके अंदर पोर्टल लिम्फेडेनेक्टमी भी साथ की जाती है। ऐसे पेशेंट्स के अंदर 5 ईयर सर्वाइवल रेट जो है ना, जिनका R0 रिसेक्शन आपने अचीव कर लिया था, वो 30 to 67% है। आप लोगों को याद होगा R0 रिसेक्शन क्या होती है? R0 is when both macroscopically and microscopically the resection margins are negative for tumor। ठीक है। R1 जब होती है, जब मैक्रोस्कोपिकली तो फ्री ऑफ ट्यूमर होता है, मगर माइक्रोस्कोपिकली वो पता लगता है कि आपके जो मार्जिन है वो इन्वॉल्व इन ट्यूमर। और R2 रिसेक्शन वो है जिसको करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप मैक्रोस्कोपिकली और माइक्रोस्कोपिकली भी छोड़ के आ रहे हैं। तो ये सिर्फ साइटो रिडक्शन कर रहे हैं पेशेंट की, एंड डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ द ट्यूमर समटाइम्स इट इज एक्सेप्टेबल टू इवन डू R2, बट the surgeons who deal with malignancies, they would like to have R0 resections. So सिस्टेमिक कीमोथेरेपी रिसेक्शन करने के बाद जेमसाइटाबिन और सिस्प्लाटिन के साथ प्रोलॉन्ग्ड है सर्वाइवल पेशेंट्स का। फिर उन पेशेंट्स का जिनमें इनऑपरेबल है, उनके अंदर भी ये इस्तेमाल की जाती है। अदर वायबल थेराप्यूटिक ऑप्शंस इनऑपरेबल इंट्रापैटिक कोलेंजियोकार्सिनोमा के बिल्कुल वही हैं जो हमने कल हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की बात की थी, जिसमें ट्रांस आर्टीरियल कीमो एम्बोलाइजेशन है, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन है, या ट्रांस आर्टीरियल रेडियो एम्बोलाइजेशन है। सो दिस इज एन एल्गोरिदम फॉर intrahepatic cholangiocarcinoma. So you found an intrahepatic mass on a cross sectional imaging study, यानी ये CT कराया या MR कराया। एक कंडीशन है जिसमें सिरोसिस है, ठीक है, एक कंडीशन है जिसमें सिरोसिस नहीं है। देखें दोनों के पाथवेज डिफरेंट है। अगर सिरोसिस है, टिपिकल हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा लग रहा है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की तरह ट्रीट होगा। एटिपिकल फॉर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है, बायोप्सी करते हैं, बायोप्सी करके अगर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा इधर चला गया, लेकिन अगर वो कोलेंजियोकार्सिनोमा आया, तो देन यू कंसिडर सर्जरी, लोको रीजनल थेरेपी और सिस्टेमिक थेरेपी, डिपेंडिंग अपॉन जो हमने सारे अभी बातें की थी रिसेक्टेबिलिटी और उसके। अगर नॉन सिरोटिक लिवर है, नॉन सिरोटिक लिवर है, तो वो कहता है ऑपरेबल है तो फॉरेन सर्जरी करते हैं, ठीक है। इनऑपरेबल है तो बायोप्सी करके कंफर्म करते हैं। अगर इंट्राहेपेटिक कोलेंजियोकार्सिनोमा आ गया विद नो एक्स्ट्राहेपेटिक मेट्स, once again consider locoregional therapy और systemic therapy। extrahepatic mets है सिर्फ consider systemic therapy, ठीक है। तो सारी चीज़ किस चीज़ पे बेस करिए, क्या वो ऑपरेबल है कि नहीं है। अगर ऑपरेबल है तो सर्जरी दोनों केसेस में इंडिकेटेड है, अगर ऑपरेबल नहीं है तो देन यू कंसिडर अबाउट ईदर लोकोरीजनल थेरेपी। तो लोकोरीजनल थेरेपी इस केस में क्या होगी, इस केस में क्या होगी, इनऑपरेबल इंट्राहेपेटिक कोलेंजियोकार्सिनोमा में दैट कैन बी arterial chemoembolization और radio frequency ablation। then perihilar cholangiocarcinoma, पेरीहाइलर की हमने बात की थी, स्टेज 1 और 2 कौन से हैं, जिसके अंदर ट्यूमर जो है वो विद इन द ल्यूमन पड़ा हुआ है, और अगर ल्यूमन से बाहर भी निकला है तो उसने या एडिपोज टिश्यू को पकड़ा है या सिर्फ लिवर को इन्वॉल्व किया। तो उसमें हमने क्या किया है, उसमें एम ब्लॉक रिसेक्शन किया है, एक्स्ट्राहेपेटिक बाइल डक्ट्स की, साथ गॉल ब्लैडर को निकाला है, और हमने 5 to 10 mm बाइल डक्ट के मार्जिन ले ले proximally and distally with regional lymphadenectomy and subsequent reconstruction with Roux-en-Y hepatico-jejunostomy। जो स्टेज 3 ट्यूमर्स हैं जिसमें T3 है, जिसके साथ कोई वो उसने चैनल पकड़ लिया हेपेटिक आर्टरी का या पोर्टल वेन के कोई रेडिक्यूल पकड़ लिया है, उसकी ब्रांच को पकड़ लिया, तो आपने ये जो सारा ऑपरेशन स्टेज 1 और 2 का किया, उसके साथ उस लोब को भी निकालना है लिवर की जिसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है। देन स्टेज 3 और 4 ट्यूमर जिसके अंदर हमें मल्टीपल हेपेटिक सेगमेंट रिसेक्शन कर सकती है विद पोर्टल वेन रिसेक्शन, हाइलर एम ब्लॉक रिसेक्शन जो कहलाती है, जिसके अंदर आपने सारा निकालना है, सारे ट्यूमर को निकालना है, एक्स्ट्राहेपेटिक बिली डक्ट्स को निकालना है, पोर्टल वेन को निकाल के उसकी रिकंस्ट्रक्शन करनी है। अब इस तरह के पेशेंट्स, और स्पेशली अगर उनकी बैकग्राउंड हो प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस की, तो इनको रिसेक्ट करने के बजाय ये वो पेशेंट्स हैं जो कि लिवर ट्रांसप्लांट के लिए बिल्कुल मुनासिब कैंडिडेट है।
और वो पेशेंट्स जिनको पेरीहाइलर कोलेंजियोकार्सिनोमा है लेकिन उनकी ना रिसेक्शन हो सकती है ना लिवर ट्रांसप्लांटेशन हो सकती है बिकॉज ऑफ डिस्टेंट मेट्स और इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेजर एक्स्ट्राहेपेटिक ऑर्गन्स, उनके अंदर फिर हम जेमसाइटाबीन और सिस्प्लेटिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। पोस्ट ऑपरेटिवली जिन पेशेंट्स की रिसेक्शन पॉजिटिव थी, पॉसिबल थी, हमने कर दी, उनके अंदर हम पोस्ट ऑपरेटिवली जब कीमो रेडियोथेरेपी देते हैं तो इट हैज शोन अस टू एन इम्प्रूव्ड आउटकम। इसका एल्गोरिदम ये है, पेशेंट पेनलेस जॉन्डिस के साथ आया, हमने इमेजिंग स्टडी कराई, बाइल डक्ट डायलेटेशन आ गई या कोई एसोसिएटेड मैस आ गया, ईआरसी करा के हमने ब्रशिंग की, बायोप्सी की, डायलेट किया, जो प्री ऑपरेटिवली हमने बिलियरी ड्रेनेज दी और पेशेंट का सीरम CA19-9 विद IgG4। IgG4 क्यों कराया? ये देखने के लिए कि कोई ऑटो इम्यून डिजीज जो स्क्लेरोजिंग कोलिंजाइटिस की हम बात करें। तो जिस पेशेंट का डोमिनेंट स्ट्रक्चर है उसका CA19-9 129 या उससे ज़्यादा है विद पॉजिटिव साइटोलॉजी, बायोप्सी और पॉलीसोमी, इन पेशेंट का फिर हम एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड करा के स्टेज करना चाहते हैं और अगर ऑपरेबल है तो इनकी सर्जरी कंसिडर होती है। उसके मुकाबले में अगर हमने इनके लिम्फ नोड बायोप्सी की, इनऑपरेबल है, ट्रांसप्लांट क्राइटेरिया को मीट कर रहा है, तो इनके लिवर ट्रांसप्लांट मेजर हेपेटिक रिसेक्शन करनी है विच इज़ नॉट कंपैटिबल विद लाइफ, सब्सिक्वेंटली इन पेशेंट्स को हम ट्रांसप्लांट के लिए ले जाएंगे। लेकिन ऐसे पेशेंट हैं जिनकी ना हम सर्जरी कर सकते हैं ना ट्रांसप्लांट हो सकता है, इनकी हम सिस्टेमिक थेरेपी विद मेटल स्टेंट करते हैं ताकि बिलियरी ड्रेनेज हो। वो पेशेंट जिनकी नेगेटिव साइटोलॉजी बायोप्सी वगैरह है और उनका CA19-9 भी 129 से कम है, कोई मैस नहीं है, इनकी हम सर्वेलेंस करते हैं, एवरी 3 to 4 मंथ ये स्टडीज रिपीट करते हैं। और वो पेशेंट्स जिनके सीरम IgG4 रेज्ड है या उनकी इम्यून हिस्टोकेमिस्ट्री पॉजिटिव है फॉर IgG4, इनको हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी का पैरेलल ट्रायल देते हैं और उस ट्रायल के बाद अगर इम्प्रूवमेंट होती है तो उसको कंटिन्यू करते हैं, अगर इम्प्रूवमेंट नहीं होती तो हम दोबारा उसको यहाँ पे लेके आते हैं। once again, you do not leave these patients alone, you keep them on your follow up and you keep them in the surveillance। जो एक्स्ट्राहेपेटिक कोलेंजियोकार्सिनोमा है हमने कहा था जो कि डिस्टल कोलेंजियोकार्सिनोमा है, विच इज द कट ऑफ पॉइंट स्टार्ट्स फ्रॉम दी, जहाँ पे रिट्रोडूडनल पोर्शन कॉमन बाइल डक्ट का शुरू होता है। ये वो पेशेंट है जिनको पाइलोरस प्रिजर्विंग प्रॉक्सिमल पेनक्रियाटिकोडुडेनेक्टमी या जो मॉडिफाइड विपल प्रोसीजर इनको इसकी ज़रूरत होती है। पेरी ऑपरेटिव कीमो रेडिएशन थेरेपी से आउटकम्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। The most important predictor are the negative tumor margins। और अगर R0 रिसेक्शन जो है अचीवेबल नहीं थी, आपने रिसेक्शन की मगर आपकी हिस्टोपैथोलॉजी बताती है कि आपका कोई मार्जिन इन्वॉल्व आ गया, तो इन पेशेंट्स को सब्सिक्वेंटली कीमोथेरेपी एंड रिलीफ ऑफ बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन चाहिए। Once again, the algorithm is the patient has painless jaundice. On imaging, there is bile duct dilatation with or without associated mass। फिर उसी तरह हमने ERC करके ब्रशिंग्स ली, बायोप्सी ली, डायलेट करके स्टेंट कर दिया ताकि पेशेंट की बिलियरी ड्रेनेज हो जाए, उसकी बिलीरुबिन लेवल्स कम हो जाए। सीरम CA19-9 विद IgG4 कराया। 19-9 129 या उससे ज़्यादा आ गया है और उसकी पॉजिटिव साइटोलॉजी बायोप्सी वगैरह है विद और विदाउट अ मैस। हमने अल्ट्रासाउंड करके देखा कि जो डिस्टल जो कॉमन बाइल डक्ट है उसका क्या हाल है, लिम्फ नोड बायोप्सी कैसी है। अगर कोई डिस्टेंट मेट्स नहीं है, N2 नोड्स इन्वॉल्व नहीं है, देन वी कंसिडर सर्जरी ऑफन रिक्वायरिंग दी मॉडिफाइड विपल। अगर डिस्टेंट मेट्स है, N2 नोड्स इन्वॉल्व है, देन वी कंसिडर द सिस्टेमिक थेरेपी एंड मेटल स्टेंट प्लेसमेंट। ERC कर दी मेटल स्टेंट, जो इसको कहते हैं सेल्फ एक्सपेंडिंग मेटल स्टेंट विच कैन ऑल्सो बी ड्रग एल्यूटिंग, कि वो ड्रग एल्यूट कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग एल्यूट करते रहते हैं जिससे उनकी लाइफ थोड़ी सी बढ़ जाती है। और सिस्टेमिक थेरेपी कीमो रेडिएशन देके देखते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स दिस इज पेलिएटिव। अगर पॉसिबल है रिसेक्शन, देन यू गो फॉर रिसेक्शन। सीरम IgG ज्यादा है, पॉजिटिव इम्यून हिस्टोकेमिस्ट्री है, वंस अगेन दीज पेशेंट शुड हैव अ ट्रायल ऑफ corticosteroid therapy and then the patient is followed up, improve हुआ है कि नहीं हुआ। अगर improve नहीं हुआ, once again you go back and do an ERCP for brushing, biopsy and CA19-9 levels। So the key points to remember is that it is classified, हमने कहा ये इंट्रापैटिक होती है,
पेरीहाइलर होती है और डिस्टल होती है, और तीनों जो है वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं। तीनों की मैनेजमेंट जो है गाइडलाइन ज़रा सी डिफरेंट है डिपेंडिंग ऑफ कोर्स अपॉन देयर लोकेशन एंड द साइज ऑफ द ट्यूमर। जब सिरोसिस होता है तो कोई भी मैस लीजन जो वीनस फेज पे आती है सीटी स्कैन के, यू हैव टू रूल आउट स्मॉल कोलेंजियोकार्सिनोमा, तो टिश्यू बायोप्सी लेना ज़रूरी है। कल भी जब हमने हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की बात की थी तो हमने कहा था 1 सेंटीमीटर से कम को हमने सर्वेलेंस करना है और 1 to 2 सेंटीमीटर की बायोप्सी करनी है। एंड द पर्पज इज दिस टू आइडेंटिफाई के साथ उसके कोलेंजियोकार्सिनोमा तो नहीं पड़ा, बिकॉज मिक्स्ड हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा विद कोलेंजियोकार्सिनोमा इज नाउ इंक्रीजिंगली बीइंग रिकग्नाइज्ड, क्योंकि आपने देखा होगा रिस्क फैक्टर्स इनके काफ़ी ओवरलैप करते हैं। और जब हेपेटिक पैरेन्काइमा के अंदर मैलिग्नेंसी होती है तो जो वो बिलरी चैनल्स को जो लाइन कर रही है एपिथेलियम, उसकी मैलिग्नेंसी होने का भी इम्कान बढ़ जाता है। Then endoscopic ultrasound is a very useful tool in evaluating the perihilar and the distal cholangiocarcinomas, especially ये ढूंढने के लिए कि कौन से potential candidates हैं जिनको liver transplantation का फ़ायदा होगा या नहीं होगा, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि N2 nodes involved हैं कि नहीं है, ऑपरेबिलिटी हमें पता लग जाती है। जिन पेशेंट्स का हमारा ख्याल है कि वो उस तरह से रिसेक्टेबल नहीं है मगर इनको लिवर ट्रांसप्लांट चाहिए, उनकी FNA करने का विद अल्ट्रासाउंड ग्रेज करना चाहिए, क्योंकि वंस अगेन सीडलिंग होने का इम्कान है और आप ट्रांसप्लांट कर देंगे, लेकिन चूंकि आपने एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड थ्रू द ल्यूमन किया हुआ है ड्यूडेनम के, तो आप उस सारे एरिया के अंदर सीडलिंग छोड़ के आ सकते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे मलिग्नेंसी डेवलप हो जाएगी, तो उनकी ट्रांसप्लांट होने का जो इम्कान है वो आप उसको ख़त्म कर देंगे। वेयर अवेलेबल फिश एनालिसिस होना चाहिए। फिश एनालिसिस क्या होता है आपको मेरे से ज़्यादा पता होगा। इट इज़ दी जो हम जेनेटिक एनालिसिस करते हैं, जीन्स को देखते हैं, जो हमने फोकल डिफरेंट पार्ट्स देख के आइडेंटिफाई किया जाता है इम्यूनोसाइटोहिस्टोकेमिस्ट्री के ज़रिए। ये देखने के लिए हमें पहले भी हमने इसकी बात की थी कि जो डिफरेंट टाइप के कोलेंजियोकार्सिनोमास हैं उनके डिफरेंट ज़रा जेनेटिक प्री डिस्पोजिशंस भी ढूंढी जाती हैं। जो लिवर ट्रांसप्लांटेशन कोलेंजियोकार्सिनोमा के साथ है उसमें बहुत हाई इम्कान है इस चीज़ का कि रिकरेंस हो जाए, स्पेशली इंट्रापैटिक में, लेकिन अभी तक जो इट इज़ नॉट अ कंट्राइंडिकेशन, खासतौर पे उन पेशेंट्स के लिए जिनमें पेरीहाइलर है, जिनको न्यू एडजुवेंट थेरेपी मिल सकती। इंट्रापैटिक साइज बड़ा है जिसके लिए आप लिवर ट्रांसप्लांटेशन करें वो तो उसमें रिकरेंस होने का इम्कान ज़्यादा है, मगर जो पेरीहाइलर है उसके अंदर पेशेंट्स को ट्रांसप्लांटेशन करने का फ़ायदा हो सकता है पेशेंट्स को, स्पेशली जिनको हम न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी दे दें, फिर रिसेक्ट करें और उसके बाद लिवर ट्रांसप्लांट कर दें। पेरीहाइलर को सिंपली सिर्फ जो ट्यूमर है उसकी लोकेशन के ऊपर स्टेज नहीं करना, लेकिन आपने जो बिलियरी ट्रैक्ट, लिवर पैरेन्काइमा, वास्कुलर लिम्फ नोड इन्वेजन और उसके अलावा इंटर और एक्स्ट्रा हेपेटिक मेटास्टेसिस के ऊपर करना है, जो कि हमने देखा TNM क्लासिफिकेशन है। और अब हम बिस्मथ कॉर्लेट क्लासिफिकेशन जो सिर्फ जो ट्यूमर की लोकेशन पे बेस्ड थी उसको इस्तेमाल करने की बजाय अब हम ज़्यादा इस्तेमाल TNM क्लासिफिकेशन जो अमेरिकन जॉइंट कमेटी ऑन कैंसर की रिकमेंडेड है उसको यूज़ करते हैं। So thank you once again and I hope it had been useful. Please go through your textbooks. जितना हमने पढ़ा है इसको अगर आप साथ साथ पढ़ते रहें, it would help you in understanding and having a conceptual knowledge about these things. And subsequently जब हम इस मॉड्यूल का इम्तिहान लेंगे तो उसमें आपको इसका फ़ायदा होगा. If there are any questions, please don't hesitate to contact me. Thank you.